गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब पे। एट फर्स्ट, व्हाट इज दिस वर्ब? Verb actually, how students easily can understand verb. Verb is an action word that states what a person do or what person does. Suppose I say yes, I say Ram play football. So what this Ram and what this Ram is doing? So the action is he is doing or he is playing the ball. So in this way, what a person do or does. I went to market. What I did? I went. जाने का काम. So whatever a person do or does, इससे कुछ चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे मैंने कुछ किया तो मेरे काम जो है किसी चीज़ पे अफेक्ट करते हैं। जैसे I bought an umbrella। तो आइए देखिए, I bought an umbrella। What I did? हमने क्या किया? खरीदने का काम किया। तो खरीदने का काम किया, फिर क्या खरीदा? तो So I bought an umbrella। क्या खरीदा? अम्ब्रेला। तो मेरा क्या काम क्या हुआ? क्रिया क्या हो गया? क्रिया हो गया आपका बाउट, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? एक्शन तो हुआ, लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा? अम्ब्रेला पे। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द वर्ब। एक्चुअली दिस इज कंसिडर्ड एज द वर्ब। वैसे verbs are of various types. At first I will write here what is verb, because for your understanding and to make you clear what is verb, simply you can say verb is an action word. Okay, verb is an action word. Simple. Verb is an action word that implies something being done. Something being done. Something being done. Done. Or we can say what a person do or does. This, you see, this is verb. Verb is an action word that implies something being done, or we can say what a person do. When you ask question, what you do, what they do, then they slept. The sleeping is verb. They ate chocolates. What they do? They ate chocolates. Eating. They does the work of eating. So you came to understand eating is verb here. They dance on stage. They dance on birthday party. What they did? They dances. Yes, dance. उन्होंने नाचने का काम किया. So every action, every event, every performance are considered as verb. Every work done by a person is considered as verb. कुछ भी, whatever one is doing, that is considered as verb. Like play, eat, sit, go, come, run, yes, hide. Whatever a person do, and that his deeds has an effect, yes, maybe on some other or on he himself. Like you see, Ram drinks
So you see what Ram does? He drinks. पीने का काम किया. लेकिन यहाँ it is not taking help of other words. Here it is directly indicating that what Ram is doing here. So Ram is drinking. Oh yes, I will tell something about transitive and intransitive verb. Transitive and intransitive verb. Intransitive verb. So transitive and intransitive verb. When narrator or when subject here does the work and has effect on other object. Yes, like Ram. Same, you see here, Ram. Same Ram is here. Ram is here. Now for transitive, Ram plays. Yes, football properly. It doesn't matter if I write this or not, but after this verb, I am taking help of some other words. That means to say that Ram does a work and it has effect on this. So works and it affects on other words. Then when we get the sentence like this, जब हमको वाक्य ऐसे मिलते हैं, जब एक व्यक्ति ने कुछ किया है और उसका जो है असर किसी और भी चीज पे पड़ रहे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग, ये जो वर्ब होते हैं इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. क्या? ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन इस जगह पे यहाँ बिना कोई सहारा लिए, without taking an help, only this single word is making clear the sentence. Maybe half clear or full clear, it doesn't matter, but we can understand what this Ram means to say. Ram drinks. So this is your intransitive form. I think, my dear student, you might have been clear about this. Yes, you might have clear about this. So Ram drinks. This is intransitive, where Ram plays football properly. Here this is transitive verbs. So others, so many different types of verbs are here. We call, yes, be verbs are there. Yes, for be verb, V verb. For be verb we use is, you see, do, have. Yes, we do have. You see, these are also verb. And you might have observed in your sentence something like that. You see, she is pronoun here. She is reading English book. What? English book. So you see, you might have observed words like this. Yes, what is this? Yes, this is your verb, because this is action word. What she refers to a subject, what a subject do or does. So reading, the work, the action word is reading. So reading work implies that what this person is doing. So reading English book. अब यहाँ से आपको पता चलता है ये व्यक्ति जो है ये क्या कर रहे हैं. सो जो ये काम कर रहे हैं वह वर्ब हो गया. तो नो डाउट दिस इज वर्ब. बट व्हाट इज दिस? सो
In this way, words that are used to give more clear senses. Yes, such words that are used to give more clear senses about the event, and proper timing. आइए देखिए यह क्या होता है। इज बताता है कि मतलब किस सिचुएशन पे काम हुए हैं। यस, दैट गिव्स यू अ स्ट्रक्चर, वो आपको स्ट्रक्चर देंगे। आइदर वह काम आपको तत्काल मिले हैं, या कल होने वाले हैं, या पहले ही हो गए हैं फ्यूचर में। तो दे आर डिटरमाइनर्स, ये डिटरमाइन करते हैं कि आपके जो काम हुआ है, हो गया है, होने वाला है, या होगा। यस, सो दे टॉक्स अबाउट द टाइम पीरियड्स, दे टॉक्स अबाउट द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द इवेंट। सो such type of words that are used, they are considered as, yes, they are considered by two ways. Somebody call them helping verb too. So dear student, I will make you know that, yes, helping verb is words that are used before verb and after noun either pronoun। तो आप समझिए हेल्पिंग वर्ब वह वर्ड्स होते हैं जो जस्ट सब्जेक्ट के बाद कहाँ यूज होंगे, सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट के बाद, और आपके जो मेन वर्ब रहते हैं, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। एक्शन वर्ड को, जो भी एक्शन वर्ड हैं उन्हें मेन वर्ब कहा जाता है। जस्ट एक्शन वर्ड के पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद, एक्शन वर्ड के जस्ट पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी वर्ड्स यूज्ड होते हैं टू गिव अ क्लियर सेंस ऑफ अ सेंटेंस अबाउट टाइमिंग, अबाउट प्रॉपर टाइमिंग, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और आपको बता दें, इन्हें एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। क्या? एक्सिलरी वर्ब। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही वर्ड को, इसी को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो सिर्फ इज, ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इज ही नहीं, आप सबको बता दूं, देयर आर 12 स्ट्रक्चर्स फॉर टेंसेस इन ग्रामर। You see, 12 structure for tenses in grammar, but when you talk about passive, some more structures are there. But for active voice, altogether 12 structures are there. Out of 12, other all 10 structures have auxiliaries. Auxiliaries are helping verb. You see, जो भी आप लोग पहले भी सुने होंगे, इंग्लिश ग्रामर में 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंसेस के, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के 4 हो गए, उसके बाद पास्ट टेंस, इनके भी 4 हो गए, और फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 हो गए। तो ऑल टुगेदर कितने हो गए? आइए देखिए, 4 4 8 4 ऑल टुगेदर 12। तो इन 12 स्ट्रक्चर में से 10 स्ट्रक्चर्स में तो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड होते हैं। बस इनमें से 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज्ड होता है, जैसे
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि आपको हमने बताया सब्जेक्ट के बाद कुछ एक्जुलरी, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ड यूज होते हैं जिन्हें एक्जुलरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जस्ट सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब की फॉर्म्स आ गए, ठीक ना। अब वही हम पास्ट टेंस में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट V5 V1 V5 जो है V2 के रूप ले लेते हैं और यहाँ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यही दो सिचुएशन है। अब 10 + 2, 10 और 2 जोड़ के ये 12 स्ट्रक्चर होते हैं। तो अदर ऑल जो स्ट्रक्चर्स हैं सब में आपका जो है एक्जुलरीज यूज है, एक्जुलरी वर्ब यूज है, हेल्पिंग वर्ब यूज है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यह है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ गए, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ गए, कोई एक्जुलरीज नहीं। तो एक्जुलरी वही एक्जुलरी जो आपके स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, देखिए प्रेजेंट के लिए हो गए, फिर हैज, हैव भी हो गए, ये सब प्रेजेंट टेंस में आपको मिलेंगे। वहीं हम लोग पास्ट में जब जाएंगे यह बदल करके हो जाते हैं, देखिए पास्ट में हो जाते हैं वाज, वेयर, और हैज जो है हैड में बदल जाता है, ठीक ना। अब फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में जैसे ही जाएंगे हम लोग तो विल, शैल का यूज होता है। तो अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैज, विल, शैल। यस, is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, dare to, need to, used to, ऐसे बहुत सारे एक्जुलरीज हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्जुलरीज हैं। तो आप सब समझ गए होंगे यहाँ प्रेजेंट टेंस में यह एक्जुलरीज यूज होते हैं, पास्ट टेंस में ये वाले एक्जुलरीज यूज होते हैं और फ्यूचर टेंस में ये वाले एक्जुलरीज यूज होते हैं। अब इसी तरह अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इन एक्जुलरीज के बाद और भी हैं जिन्हें आपको ध्यान देना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल एक्जुलरीज और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आते हैं जैसे विल, वुड, ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। So they are modal verbs, or you can say that modal auxiliaries. So in this way they have uses in our sentences, or when we are making sentences, so we use this verb. क्रिया के यूज होते हैं। तो एक जो आप पढ़ लिए सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब कहा गया या एक्जुलरी वर्ब कहा गया, एक हो गया क्रिया जो मेन वर्ब हम कहते हैं और मेन वर्ड और हेड वर्ड कहते हैं, जो एक सेंटेंस को लीड करता है, एक सेंटेंस को बताता है एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं। दिस इज हाउ टू नो अबाउट जनरल यूजेस ऑफ दिस वर्ब। दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट एक्जुलरी, वी केम टू नो अबाउट वर्ब, वी केम टू नो अबाउट मॉडल वर्ब्स। तो in this way I hope you might have cleared about this. आप लोग क्लियर हो गए होंगे ये वर्ब्स क्या होते हैं और इनके यूजेज क्या होते हैं। तो इसी तरह जो भी वीडियोस रिलेटेड टू ग्रामर्स हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, अभी काम उसी पे कर रहे हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो
नॉलेज के लिए, आपके आइडियाज़ के लिए, आपके आइडियाज़ को इलाबोरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो जीपी इंग्लिश लर्निंग चैनल पे जाइए। उसके बाद आप कुछ कमेंट करिए, आपको प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट के थ्रू हमें वीडियोस पे वर्क करने के लिए थोड़ा मेरे, because I am a new worker on YouTube, so you please help me and for your senses, for your understanding, आपके लिए इससे भी बेहतर क्या हो सकता है, क्या हमको करना होगा, आप उसके कमेंट के थ्रू मेरे वीडियोस पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।